So, very good evening, all the participants. Today, the topic for today's discussion is pre-pack insolvency resolution process. I've already shared the presentation with you. So, just let me start the presentation. Just a minute. Give me 1 minute. Okay. So, I hope my screen is visible. Is it visible? Yes. Okay. So, and I've started the recording also. Just a minute. So, first things first. In pre-pack, there are section 54A to 54P. Now, when this pre-pack started, they used to ask this question that 54A belongs to what? 54B stands for what? So this is a just a sample of what I have created on the request of a student. कि सर जी याद नहीं होता 54A क्या है, B क्या है, C क्या है, तो आप जो है ये हमें एक बना दीजिए भाई, ऐसे होगा. तो आई वुड रिक्वेस्ट शीतल जी टू प्लीज रीड. आपको कुछ समझ में आता है एज ए स्टूडेंट कि 54A? शीतल जी, कैन मेरे यू रीड लिए इट? हाँ. यस सर. हाँ सर ऐसे टेबल विद शॉर्ट नोट्स ऐसे ही थॉरोली हाँ खाली हाँ रीडिंग ही करना है. हाँ, बस ओके. बस बस. कि आपको ऐसे बोलना है 54A स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन बाय होम. जैसे ए ओके. से क्या होता है? एप्लीकेशन. ए से हमें याद ओके. रहेगा ना. जैसे एग्जाम में क्या यस. पूछेगा, 54A किसको डिनोट करता है? ए से आपको क्या याद रखना है? एप्लीकेशन. राइट. ओके. हाँ. सेक्शन. ओके. Section 54A to Section 54P. A stands for application by whom? Classified corporate MSME, default proposal and approval of IP by unrelated financial creditor. हाँ, तो बेसिकली 54A में ये बातें कवर्ड है, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे. हाँ. Okay. B. 54B. Before initiation duties of IP. CD and base resolution meets the requirement. Fees of IP to be borne by whom? C. Commencement or initiation. Form attachment with application. Adjudicating authority to accept or reject. 54D stands for duration. 120 days, 30 days or 90 days and 90 days. No extension, only termination. 54E is estoppel. Moratorium. Moratorium as per section 14, appointment of RP and public announcement. F. 54F, functions of RP. Conduct, confirm list, inform CRS, maintain COC and IM, information memorandum. 54G. G Huzur. Covers 2 days list, PIM, liability for omissions. 54H stands for having control. हम ही रहेंगे मालिक दोस्त. Okay. 54I for COC. Constitution of COC within 7 days based on updated claim. First meeting within 7 days. 54J. Jugglery by CD. No jugglery. COC may with 66% approval. Ask the CD. Apply by RP in P14. हाँ, एप्लीकेशन बाय आरपी इन P14. अच्छा, application by RP in P14. Okay. 54K, कौन बनेगा king? Covers consideration and approval of resolution plan. 54A, linking of adjudicating authority. 54L. Liking of adjudicating authority. सुहागन वही जो पिया मन भाई. 54M, Milord appeal on the grounds laid down in section 60, subsection 3. 54N, N for no to pre-pack termination of PPIRP, termination and liquidation. 54O, zero initiation of CIRP, 0 to 0. 54P, provisions of chapter to apply. Chapter 2, 3, 6 and 8
एंड 7। 6 and 7 to apply with modifications. तो देखिए मैंने ना एक इंडिकेशन दे दिया आपको, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आपको ये ठीक लगे इसको याद कर लीजिए, आपको कुछ और बेटर लगे अपना बना लीजिए। ठीक है ना। कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि 54F रिलेट्स टू, इसमें तीन चार ऑप्शन दे देगा आपको। अगर एफ से आपको फंक्शन याद आ गया ना तो आप कर लोगे। Okay, sir. ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो कई बार कि 54I रिलेट्स टू व्हाट। अब आई का मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया तो मैंने सीओसी लिख दिया। अब जे तो बहुत Okay, आसान है, जे से जगलरी बन जाएगा, ओ से जीरो बन जाएगा, बहुत आसान है ना। डी से ड्यूरेशन बन जाएगा। तो ऐसे थोड़ा एक दो बार आप ध्यान में रखेंगे ना तो याद हो जाएगा। और ये है कि आप इससे और कोई बनाना चाहो अपने हिसाब से तो वो बना सकते हो। ठीक है, चलिए। सेक्शंस ऑफ प्री पैक, ये सारा ये सेम ही है। आप एक बार पढ़िए जरा, एप्लीकेशन फॉर पीपीआईआरपी। yes. Application for PPIRP Rule 4. Form number 1 under Rule 4, subsection 1, Sub-Rule for 1. Fees rupees 50,000 served to board. हम्म Along with application, CD must provide declaration, special resolution or resolution, approval of a financial creditor, name and written consent of IP in Form P5, and his report, Form P8, declaration regarding existence of any PUFE transactions, audited financial statement for last 2 years, provisional financial statement for current years. हम्म Okay. तो ये पढ़ना है सर? नहीं अभी नहीं, यहाँ ये पढ़िए। ओके. ये पूरा प्रोसेस है, इनिशिएशन ऑफ 120 प्री डेज का पैकेज. ये प्रोसेस है, इसका ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि किस तरह से आपको करना है। हाँ जी। ओके. एप्लीकेशन फॉर पीपीआरपी डे सेकंड डे ऐसे स्टार्ट करो ना सर, सेकंड डे हाँ पब्लिक अनाउंसमेंट. हाँ, देखिए ऐसा है, वंस एन एप्लीकेशन फॉर पीपीआई, आप अपने हिसाब से पढ़ो ना इसको, ऐसे पढ़ो। वंस एन एप्लीकेशन फॉर पीपीआई आरपी इज अप्रूव्ड, सो विद इन 2 days यू हैव टू डू पब्लिक अनाउंसमेंट। एंड पब्लिक द डिफरेंस देन. हियर इन पब्लिक अनाउंसमेंट इज दैट देयर इज नो अनाउंसमेंट इन पेपर, न्यूज़पेपर में नहीं होता। तो ये फॉर्म P9 में होता है। जो भी क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स के लिए सीडी देता है और उनको ही ये अनाउंसमेंट जाता है। इट इज नॉट इन पेपर्स। ये यूनिक फीचर है पीपीआईआरपी का। Okay. यस। So after public announcement within 3 days, रजिस्टर्ड वैल्यूअर का अपॉइंटमेंट होता है. वेरी गुड। और उसके अपॉइंटमेंट के बाद विद इन 7 days सीओसी का कॉन्स्टिट्यूशन करना है हमें. हम्म देन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद 14 days में फर्स्ट सीओसी मीटिंग हेल्ड होगी टू हम्म सबमिट द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. हम्म आफ्टर दैट विद इन उसके 7 days मतलब टोटल 21 days के बाद इन हम्म 21st days publication of invitation for resolution plan. हम्म Okay. Then 7 days at the day of 30, forming opinion on avoidance of transaction, avoidance हम्म transaction. हम्म उसके बाद at the 40 within 45 days, determination of avoidance transaction. हम्म। Then जैसे से इसका पीरियड होता है ना पीयूएफई ट्रांजेक्शंस का, पीयूएफई yes, yes, ट्रांजेक्शन का वहां सीआईआरपी में पीरियड है 75, 115 एंड 130, है ना। ऐसे यहां पर yes, पीरियड yes, है 30, 45 एंड 60। 60. उसके बाद फाइलिंग एप्लीकेशन विथ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विथ रिस्पेक्ट टू अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन. एंड 90 days के बाद अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान बाय सीओसी और सबमिशन. और है या विथ है सर? सबमिशन ऑफ अप्रूव्ड प्लान टू ए। यस सर. एंड बाय 120 days अप्रूवल और रिजेक्शन ऑफ द प्लान बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. हाँ, तो ये 120 डेज का पूरा साइकिल है। लेकिन ये जो 120 डेज है, दिस स्टार्ट्स विद द अप्रूवल ऑफ द एप्लीकेशन फॉर पीपीआईआरपी। इससे पहले भी एक प्रोसेस है। ठीक है। ये बाद में पढ़ेंगे।
जी अब यहां से पढ़िए, यहां से स्टार्ट होता है पीपीआईआरपी। इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कब स्टार्ट हुआ, आप पढ़िए जरा। Yes, sir. और बड़ा Ordinance करना है क्या passed. है, ठीक है। Name the eligible. ओके। Ordinance passed on 4th April 2021 to amend Principal Act, the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. IBBA notified PPIRP regulation and applicable from 9th April 2021. Purpose: COVID-19 pandemic has impacted business, financial market, and economics all over the world, including India, and has impacted the business operation of MSME and exposed many of them to the financial distress. The government has taken several measures to mitigate the distress, including increasing the minimum amount of default for initiation of CIRP to 1 crore, suspending the filing of CIRP for 1 year, beginning from the 25th March 2020 to 24th March 2021. MSME sector contributes significantly to the GDP, employment in the country. It is necessary to consider and address the specific requirement of MSMEs relating to resolution of their insolvency due to the unique nature of their business and simpler corporate structure. It is necessary to provide quicker IRP to MSME, ensuring quicker and cost-effective and value-maximizing outcome for all the stakeholders in a manner which is least disruptive to the continuity of their business and which preserves the job. In view of this, the principal code is amended to add the process called pre-packed insolvency process for CD classified as MSME. तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है ये किस पर एप्लीकेबल है, कौन कौन इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है। MSME, और कॉर्पोरेट होना जरूरी है या नॉन कॉर्पोरेट भी डाल सकता है। non-corporate भी। नहीं, ओनली कॉर्पोरेट। तो कहाँ पे? भाई प्री पैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, इसका नाम ही है प्री पैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। यस यस। और ये पार्ट 2 में कवर्ड है। पार्ट 2 किसके साथ डील करता है, कॉर्पोरेट्स के साथ। पार्ट 3 जो है वो इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप। आपको देखना है कि ये कौन से पार्ट में कवर्ड है। टोटल कितने पार्ट्स हैं आईबीसी में, ओहो। आईबीसी में कितने पार्ट्स हैं, दिस इज ए क्वेश्चन। यस सर। 5 sir. 5, वेरी गुड। ठीक है, और पार्ट 2 डील्स विद व्हाट, Corporate, और पार्ट 3, non-corporate. ठीक है, और पार्ट 4, Part 4, adjudicates. Part 4, सर पार्ट 4 में क्या है, बोर्ड है, आईपीए है, आईपीई है, ये सब चीजों के साथ। और पार्ट 5, मिसलेनियस है सर। पार्ट 5 मिसलेनियस, वेरी गुड। ठीक है, miscellaneous, तो yes, sir. देखो सबसे पहले बात ये है कि ये आया कब, प्रीपैक कब आया ये, COVID. कोविड में। अप्रैल क्यों आया, व्हाट वाज द रीजन। ड्यू To give टू reduction कोविड। MSME. हाँ, टू बेसिकली टू हेल्प द एमएसएमई सेक्टर। ठीक है भाई, कोविड आ गया, लोगों का बिजनेस वैसे नहीं चल रहा, एमएसएमईज के लिए आ गया। अच्छा, एक इसमें हमने पढ़ा, लिखा सस्पेंडिंग फाइलिंग ऑफ सीआईआरपी फॉर 1 ईयर। ये जो सस्पेंडिंग फाइलिंग ऑफ सीआईआरपी फॉर 1 ईयर है, ये कौन से सेक्शन में कवर्ड है। सर सेक्शन सर 10A। 10A। वेरी गुड, वेरी गुड, सेक्शन 10 है, वेरी गुड। अच्छा, नॉर्मल जो डिफॉल्ट है वो 1 करोड़ है, क्या एमएसएमई के लिए भी डिफॉल्ट 1 करोड़ है। 10 लाख सर। 10 10 लाख, lakh. वेरी गुड। ठीक है, अच्छा मान लीजिए एक कॉर्पोरेट का 2 करोड़ का डिफॉल्ट है, क्या वो पीपीआईआरपी में एप्लीकेशन लगा सकता है। No, 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 sir. No, लगा CRP. सकता है। लगा सकता है सर। देखिए मिनिमम पीरियड है, मिनिमम मिनिमम अमाउंट है 10 lakhs का, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। तो जिसका डिफॉल्ट 2 करोड़ का है उसके पास दोनों ऑप्शन है, वो पीपीआईआरपी में जाए या सीआईआरपी में जाए। अब वो पीपीआईआरपी में क्यों जाना चाहेगा, कोई रीजन है। हाँ, क्योंकि कंट्रोल लाइज विथ CD. राइट, तो हम्म. इसमें पीपीआईपी में क्या होता है, कंट्रोल सीडी के पास रहता है। कंट्रोल सीडी के पास क्यों रहता है, कोई लॉजिक है। Uh, लॉजिक ये है कि एमएसएमई छोटे यूनिट्स हैं,
हर कोई उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो अपनी इंडस्ट्री चला रहा है। अब उस यूनिट के लिए बहुत सारे टेकर्स भी नहीं होंगे, बहुत सारे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स भी नहीं होंगे। इसके लिए यहां पर एक नई कॉन्सेप्ट आती है, बेस रेजोल्यूशन प्लान। ये बेस रेजोल्यूशन प्लान क्या है? ये बेस रेजोल्यूशन प्लान भाई तुम खुद ही बता दो कि तुम कितने पैसे देना चाहते हो। डिफॉल्ट तो है ना। अब डिफॉल्ट में वो ये कह सकता है कि जी मैं जो है 60% देना चाहता हूं, ठीक है, मैंने 100 रुपीज का लोन लिया था, भाई अब तो मैं 60 रुपीज दे सकता हूं। अगर सीओसी को लगेगा कि ठीक है, तो उसको ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, उस बेस रेजोल्यूशन प्लान को, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये कंपनी इसके पास ही रह जाएगी, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? हेयर कट। ये जैसे पहले वन टाइम सेटलमेंट होता था, आपको याद होगा जब आईबीसी नहीं आया था, तो बैंक्स में वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम होती थी, ओटीएस, है ना। ये ओटीएस क्या है? ओटीएस भी ऐसा ही है कि भाई एक आदमी पैसे नहीं दे पा रहा, तो वो कहता जी मैं तो इतने तो दे नहीं सकता, इतने दे सकता हूं, क्योंकि लिटिगेशन की भी कॉस्ट है। बैंक वाला भी सोचता है यार इसको हम अगर रिकवरी भी करेंगे तो भी इससे ज्यादा पैसे मिलने वाले नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, या उसको बोल देते हैं भाई नहीं 60 नहीं 70 दे दो, आप बेस रेजोल्यूशन प्लान को इंप्रूव कर दो। लेकिन अगर क्रेडिटर्स को लगता है कि ये ज्यादा ही चालाक बन रहा है, इसके पास पैसे तो हैं लेकिन ये देना नहीं चाह रहा, तो फिर उस केस में क्या करेंगे? नए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को इनवाइट कर लेंगे सीओसी, ठीक है। ये ऐसा ही है जैसे कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होता है, एक आदमी एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ठीक है। अब उसी कंपनी में कुछ जरूरत है, तो वो क्या करेंगे कि भाई ये आदमी तो पहले से जानता है काम को, इसको हम प्रेफरेंस देंगे। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही लल्लू राम है, उसको कुछ आता ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे? नए वाले को चांस देंगे। ऐसा ही यहां पर है, पीपीआईआरपी भी ऐसा ही है। पीपीआईआरपी में कहते हैं देखो भाई तुम कंपनी चला रहे हो, तुम्हारा एमएसएमई सेक्टर है, ठीक है, तो पहले तो तुम ही बता दो तुम कितने पैसे देना चाहते हो। अगर ठीक है, अगर वो ठीक लगेगा तो हम उसी को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ये तो हो गया फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के बारे में। अब ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के बारे में सीआईआरपी में हमने क्या पढ़ा था? ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के बारे में सीआईआरपी में क्या पढ़ा था कि रेजोल्यूशन प्लान में उनको कितना मिलना चाहिए? पढ़ा था ना सेक्शन 30। तो सेक्शन 30 क्या बोलता है? सेक्शन सर 30 कुछ बोलता है ना कि रेजोल्यूशन प्लान में कम से कम ये बातें होनी चाहिए। तो सर उसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के बारे में क्या लिखा है, कितना होना चाहिए? सर जितना भी उसका लिक्विडेशन कॉस्ट है या फिर जो रेजोल्यूशन प्लान लिक्विडेशन में वैल्यू। रेजोल्यूशन वैल्यू में विच एवर इज हायर वो उसको लिक्विडेशन मिलेगा। वैल्यू। हाँ, उसमें क्या है, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के बारे में दो बातें लिखी हैं। क्या? एक, तो मिनिमम उनको लिक्विडेशन वैल्यू तो मिलनी चाहिए। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर कंपनी का रेजोल्यूशन नहीं होगा तो लिक्विडेशन होगा, लिक्विडेशन में उनको क्या मिलेगा? लिक्विडेशन वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और लिक्विडेशन वैल्यू कैसे पता चलेगा? वो दो रजिस्टर्ड वैल्यू अपॉइंट करता है सीआईआरपी में, जो उसको फेयर वैल्यू और लिक्विडेशन वैल्यू देते हैं, ठीक है। अब उसके पास लिक्विडेशन वैल्यू आ गई, उसके पास क्लेम्स की लिस्ट है पूरी, है ना। अब क्लेम्स के हिसाब से उसके पास इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट भी है, सब कुछ है उसके पास। उस हिसाब से वो वर्किंग कर लेगा कि अगर लिक्विडेशन वैल्यू जितना ही रियलाइज हो जाए, वो एक हाइपोथेटिकल फिगर है, एक्चुअल फिगर नहीं है, तो अगर वही उतना ही रियलाइज हो जाए तो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को क्या मिलेगा। इसमें दूसरी बात भी है 30 में, एक तो लिक्विडेशन वैल्यू बोलता है, दूसरा क्या बोलता है कि द सर अमाउंट दे वुड हैव गॉट had the distribution been done in accordance with section 53. Now what is the difference between these two? First is the liquidation value, second is the amount they would have got in case of liquidation, as if the distribution had been made in accordance with section 53. क्योंकि क्या होता है कि जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो लिक्विडेशन वैल्यू के हिसाब से तो प्लान देगा नहीं, लिक्विडेशन वैल्यू से कम देगा तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, है ना। लिक्विडेशन वैल्यू से वो ज्यादा देगा नेचुरली प्लान। तो मान लीजिए लिक्विडेशन वैल्यू है 100 करोड़, वो 200 करोड़ का प्लान दिया, तो अगर 200 करोड़ का लिक्विडेशन वो दे रहा है प्लान, तो उसमें ओसीज को ज्यादा मिलेगा, तो उतना अमाउंट रेजोल्यूशन प्लान में प्रोवाइड होना चाहिए। दिस इज व्हाट इज गिवन इन दैट। अब वहीं से बोरोइंग फ्रॉम दैट, यहां पर क्या है
पीपीआईआरपी में लिक्विडेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लिक्विडेशन इज देयर इन वेरी रेयर केसेस। लिक्विडेशन कब होता है? लिक्विडेशन तब होता है कि जब एक मैनेजमेंट को निकाल दिया। हमने 54J पढ़ना है। 54J क्या है? अभी पढ़ा था शीतल जी, क्या है 54J? जे से क्या याद आता है? जाओ। हाँ, जाओ या जगलरी। Regularly. 54J जाओ भी कह सकते हो और जगलरी भी कह सकते हो। मतलब ये है कि अगर कुछ गड़बड़ करेगा तो उसको बोलेंगे 66% मेजोरिटी से सीओसी उसको निकाल सकती है, और फिर आरपी फुल फ्लैज कंट्रोल में आ जाता है। पहले क्या होता है? पहले वो सिर्फ मॉनिटर का रोल करता है। सीडी ही रिस्पॉन्सिबल है सारे काम के लिए, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, पीपीआईआरपी में। लेकिन अगर वो कुछ गड़बड़ करेगा, अगर वो कुछ फ्रॉड करने की सोच रहा है, तो 54J में सीओसी विद 66% मेजोरिटी बोल सकती है आरपी को कि आप एप्लीकेशन लगाओ और आप टेक ओवर कर लो। ठीक है। अगर मान लीजिए 54J में निकाल दिया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, लेकिन जो बाद में रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ उसमें वही आदमी दोबारा से एंटर कर रहा है जिसको निकाला था, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? फिर लिख- एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सोचती है भाई इसका तो कोई इलाज नहीं है, इसको लिक्विडेशन ही करो। ठीक है। तो लिक्विडेशन बहुत कम सर्कमस्टांसेस में होता है। नॉर्मली क्या होता है? या तो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है, या फिर रेजोल्यूशन हो जाता है, या तीसरा भी है, सीआईआरपी में भी कन्वर्ट हो जाता है ये। सीआईआरपी में क्यों कन्वर्ट हो जाता है? जैसे मैंने बताया कि 10 लाख की मिनिमम लिमिट है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट तो कोई है नहीं। इसने पीपीआईआरपी शुरू किया, लेकिन बाद में सीओसी को लगता है कि भाई पीपीआईआरपी ठीक नहीं है, इसकी नॉर्मल सीआईआरपी ही होनी चाहिए, तो वो सीआईआरपी में भी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है। जैसे वो लिखा था ना 54O0, है ना, तो हीरो टू जीरो हो जाएगा। मतलब अभी ये हीरो बना हुआ था सीडी, लेकिन बाद में ये जीरो हो जाएगा, फिर इसकी पावर सस्पेंड हो जाएगी। अभी इसके पास फुल पावर्स है। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है, और इसके साथ में आपको सेक्शन 11 भी पढ़ना है। सेक्शन 11 क्यों पढ़ना है? ये पीपीआईआरपी के साथ में सेक्शन 11 आपको क्यों पढ़ना है? क्योंकि सेक्शन सर 11 बात करता है कि अगर पहले, भाई ये आया 2021 में, आपका आईबीसी आ गया 2016 में। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहले से ही एप्लीकेशन कोई लगी हुई हो। पहले सेक्शन 7, 9 या 10 की एप्लीकेशन लगती है। जैसे मैंने बताया, एक आदमी कॉर्पोरेट एमएसएमई, ठीक है, और उसका डिफॉल्ट है 1 करोड़ रुपए से ऊपर। ये पीपीआईआरपी तब आया नहीं है। पीपीआईआरपी आया नहीं, तो सेक्शन 7, 9 या 10 की एप्लीकेशन लगी हुई है। ठीक है। अब ये नया प्रोसेस आ गया, तो सीडी को लगा यार ये तो बढ़िया प्रोसेस है, मेरे पास कंट्रोल भी रहेगा, तो मैं ये वाली एप्लीकेशन क्यों ना लगा दूं। है ना, एक एप्लीकेशन पहले लगी हुई है और ये दूसरी एप्लीकेशन लगा देता है। तो जब ये दोनों एप्लीकेशन लगी हुई हैं, कौन सी पहले लगी कौन सी बाद में, ये सब बातें कौन सा सेक्शन बताता है? 11। सेक्शन 11। सेक्शन 11 ही ये तीन सिचुएशन बताता है कि अगर पहले 7, 9, 10 की एप्लीकेशन लगी हुई और उसके बाद में ये प्रीपैक वाली एप्लीकेशन लगाई तो क्या होगा, अगर विद इन 14 डेज लगा दी तो क्या होगा, आफ्टर 14 डेज लगाई तो क्या होगा, ये सारी बातें। और उसका एक नॉर्मल सा मोटिव है सेक्शन 11 का कि पीपीआईआरपी को प्रेफरेंस देना है। ठीक है। तो सेक्शन 11 भी हम इसके साथ में पढ़ेंगे। चलिए अब एक बार पढ़ लीजिए, शीतल जी पढ़िए जरा। Yes, sir. New amendment to definition. New and amendment to definition. Following are new or amendment to definition. First, proviso added to section 4, applicability of CIRP. At present, CIRP is applicable when default is minimum of rupees 1 crore. Proviso added is that CG will prescribe applicable limit amount separately for MSME and which shall not be more than rupees 1 crore. On 9th April 2021, CG have prescribed this amount minimum rupees 10 lakhs. देखो मिनिमम प्रेस्क्राइब किया, मैक्सिमम कुछ नहीं है। ठीक है। मैक्सिमम 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ कुछ भी हो सकता है। Yes, sir. हाँ जी। 2. Base resolution plan
means a resolution plan provided by corporate debtor under clause C of subsection 4 of section 54A. तो मैंने बताया Definition. कि बेस रेजोल्यूशन प्लान एक नया कॉन्सेप्ट आया, और बेस रेजोल्यूशन प्लान की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दे रखी है, कौन बताएगा? बेस रेजोल्यूशन प्लान की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दे रखी है, और दे भी रखी है या नहीं? सर दे तो रखी है, आई थिंक थर्ड में ही होगा सर, सेक्शन 3. हाँ, नहीं, बेयर कोड आपके सामने है, पढ़ लीजिए। यस सर, यस. सेक्शन 5 सब सेक्शन 2A, पढ़िए जरा। सेक्शन यस 5 सर, सब सेक्शन यस. 2A। एक सेकंड सर, ओपन. अच्छा. हम्म। A base resolution plan means resolution plan provided by corporate debtor under subclause C of subsection 4 of section 54A. हाँ, ठीक है ना, तो यहां इसको Yes, sir. रेफरेंस कर दिया उससे। तो Yes, ये sir. बेस रेजोल्यूशन प्लान है। तो यहां Yes. पर पीपीआईआरपी में ये है कि बेस रेजोल्यूशन प्लान कॉर्पोरेट डेटर ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। Yes, sir. अब ये बेस रेजोल्यूशन प्लान ये खुद भी दे सकता है और किसी को साथ मिला करके भी दे सकता है। Okay. ऐसा होता है ना, कई बार ये है कि भाई ये अकेले नहीं देना चाहे, ये किसी और को भी साथ में मिला सकता है। जैसे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट भी एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं ना, ऐसे यहां पर भी सीडी खुद भी दे सकता है और किसी के साथ मिल करके भी बेस रेजोल्यूशन प्लान दे सकता है। यस, नेक्स्ट। Definition: where the word CIRP is appearing, the word PPIRP is added in all relevant section and amended accordingly. हम्म। Details can be seen in section wise. हम्म। All forms under this regulation start with P. तो यहाँ P1 P2 P3 ऐसे फॉर्म्स। Yes. हाँ, एलिजिबिलिटी। Eligibility under section 54A. हम्म। Okay. एक मिनट। हाँ जी। हाँ सर, हाँ. ये सर वो MSME under section 7 subsection 1 of MSME Development Act 2006. तो इसका मतलब पहला, एक तो ये एमएसएमई होना चाहिए, और एमएसएमई हम कहाँ देखेंगे? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में। 1 में. हाँ। फिर डिफॉल्ट एज पर सेक्शन 4 ऑफ IBC. हाँ, और डिफॉल्ट And- कितना होना चाहिए पीपीआईआरपी में? मिनिमम 10 लाख. मिनिमम 10 लाख। हाँ, और मैक्सिमम? नो लिमिट. मैक्सिमम नो लिमिट, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए डिफॉल्ट 50 लाख का है, तो क्या सीआईआरपी की एप्लीकेशन लग जाएगी? नहीं लगेगी ना, वहां पे तो 1 CR. हाँ, पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन लग सकती है, लेकिन अगर डिफॉल्ट 1 करोड़ या उससे अबव है तो दोनों चांसेस हैं, दोनों ऑप्शंस ओपन है, पीपीआईआरपी लगाओ या सीआईआरपी लगाओ। तो नेचुरली ये पीपीआईआरपी लगाएगा। एक बात और बता दो कि ये जो सेक्शन 54A में क्या फाइनेंशियल क्रेडिटर भी एप्लीकेशन लगा सकता है या नहीं लगा सकता? मान लीजिए एक कॉर्पोरेट एमएसएमई है, ठीक है, अब उसका डिफॉल्ट हो गया 50 लाख का, तो वो कौन से सेक्शन में एप्लीकेशन लगाएगा? यस सर। है? यस, यस सर। क्या एप्लीकेशन कौन से, कहां पर लगाएगा? मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए। एक कॉर्पोरेट एमएसएमई है, उसने डिफॉल्ट कर दिया, एक बैंक ने लोन दे रखा है इसको 50 लाख का, उसका हो गया डिफॉल्ट। बैंकर कौन से सेक्शन में एप्लीकेशन लगाएगा? सर ये सीढ़ी लगाएगा। हाँ, बैंकर आईबीसी में नहीं जा पाएगा, क्योंकि प्रेशर है. 1 करोड़ मिनिमम होना चाहिए, और यहां पर पीपीआईआरपी में सिर्फ सीडी ही एप्लीकेशन लगा सकता है, कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर या कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन नहीं लगा सकता। क्योंकि ये पीपीआईआरपी बनाया किसके लिए गया है? पीपीआईआरपी कॉर्पोरेट एमएसएमई को हेल्प करने के लिए ही बनाया गया है। और आईबीसी जब हमने शुरू से पढ़ा है कि इट इज नॉट ए रिकवरी लेजिस्लेशन, इसका पर्पस रिकवरी नहीं है। रिकवरी के लिए तो सिविल कोड्स हैं, कमर्शियल कोड्स हैं, डीआरटी है, सरफेसी है, वहां जाओ, है ना। लेकिन यहां क्या है, आईबीसी में आए हो, आईबीसी का ये पर्पस नहीं है आपको पैसा दिलवाना, आईबीसी का पर्पस ये उस कंपनी को चलाना अगर हो सके तो, और नहीं चल सके तो लिक्विडेट करना। आईबीसी का पर्पस वो है।
हाँ जी, And third, approval from unrelated financial creditors हाँ, provides with 66% approval. ये हो ही गया। सर, हाँ जी, तो ये फिनेंशियल क्रेडिटर की 66% अप्रूवल के साथ ही एप्लीकेबल है। तो वो अभी आगे तो आगे हमने पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। हाँ जी, अब एमएसएमई देख लें, एमएसएमई कौन है। एमएसएमई के लिए अभी एमएसएमई की लिमिट चेंज हो गई है, लेकिन हमारी जो कट ऑफ डेट है वो 4 अप्रैल 2025 है, उसमें यही लिमिट है। क्योंकि हमारा जो बजट आया था अप्रैल 25 वाला, उसमें लिमिट चेंज हुई थी, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके तो हमें जो लिमिट पढ़नी है वो ये वाली लिमिट पढ़नी ओके है। पढ़ो सर। हम्म। Further, the limit of investment and turnover for medium category has been enhanced by notification date 26th June 2020. हम्म। Classification, manufacturing and service, micro cover investment less than 1 CR and हाँ, turnover वैसे वर्ड लिखा within है 5 वहां पर CR. डज नॉट एक्सीड, है ना, तो डज नॉट एक्सीड आएगा इसमें, मतलब 1 करोड़ भी अगर होगा तो इसी में आएगा, मतलब ये है। अच्छा, within 1 CR and turnover within बराबर. हाँ। Small category classified when investment within 10 CR and turnover within 50 CR. हम्म। And medium category classified when investment is within 50 CR and turnover is under 250 CR. अच्छा, अब आप ये देखो कि वर्ड यहाँ पर एंड लिखा है। एंड का मतलब ये है कि दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। Yes. अब मान लीजिए एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, जैसे मान लीजिए इन्वेस्टमेंट तो है आपकी 40 करोड़, अगर Hmm. इन्वेस्टमेंट 40 करोड़ है और टर्नओवर 200 करोड़ है, तो कौन से में आएगा? उस इन्वेस्टमेंट 40 करोड़ है और टर्नओवर 200 करोड़ है, तो कहां पर कवर होगा ये? स्मॉल में। है, स्मॉल सर, स्मॉल। स्मॉल में क्या होगा? स्मॉल में तो 50 करोड़ तक की टर्नओवर वाला आएगा, उसको बोलेगा तू तो ज्यादा है, 200 है, अगले में जाओ। और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया नॉट दोनों फुलफिल्ड। क्राइटेरिया फुलफिल होने ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने हैं। दोनों में यस। से एक भी नहीं होगा तो अगले में शिफ्ट कर देंगे उसको। हम्म। अगले में क्यों शिफ्ट कर देंगे? क्योंकि एमएसएमई में कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, माइक्रो को ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं, स्मॉल को उससे कम बेनिफिट मिलते हैं, मीडियम को उससे कम बेनिफिट मिलते हैं। ये एमएसएमई एक्ट सिर्फ पीपीआईआरपी के लिए नहीं है। एमएसएमई एक्ट जो है वो बेसिकली जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर के एमएसएमईज हैं उनको हेल्प करने के लिए है। तो अगर एक में भी लिमिट एक्सीड हो गई, जैसे टर्नओवर अगर 50 करोड़ से एक्सीड हो गई, तो मीडियम में चला जाएगा। बराबर. समझ गए आप? यस सर। है ना? यस। तो उसका लॉजिक भी है, लॉजिक मैंने बताया, लॉजिक ये है कि वो उसको बेटर कैटेगरी में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि माइक्रो में सबसे ज्यादा बेनिफिट है। तो अगर मान लीजिए किसी की टर्नओवर, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट जो है 50 लाख रुपए, ठीक है, और टर्नओवर है 6 करोड़, तो किस में आएगा? नेक्स्ट में 6 हाँ, करोड़ हो गया तो स्मॉल में. हाँ, जैसे ही 1 करोड़ से एक्सीड हुआ, वो अगले कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। यस. तो इन ये केस हमारी ऑफ लिमिट्स हैं एज पर आवर से लिमिट। अगर आप गूगल करोगे आपको कुछ लिमिट्स अलग नजर आएंगी, वो अप्रैल 25 वाला जो फाइनेंस एक्ट है उसमें अमेंडमेंट हुई थी, लेकिन वो लिमिट आप पर एप्लीकेबल नहीं है। यस. एक दो बातें और है इसमें, हालांकि अभी इतना कोई रेलेवेंट नहीं है। एक तो ये कि एक्सपोर्ट टर्नओवर इसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं। अगर मान लीजिए कोई 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, तो उसका टर्नओवर कितना माना जाएगा? मान लीजिए कोई 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, जीरो। हाँ, जीरो माना जाएगा। वेरी गुड। और आपको आईटीआर से लिंक्ड है जो भी इन्वेस्टमेंट है आपकी, और ये वाले चीजें कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस, इसको आपको एक्सक्लूड करना है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी से। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपको प्लांट एंड मशीनरी की लेनी है, इन्वेस्टमेंट यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग की नहीं है। समझ रहे हो आप? ये जो सही है। है, ये जो इन्वेस्टमेंट लिखी है ना, ये नहीं कि आपने फर्नीचर खरीद रखा है या लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रखी है, वो नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी ओनली, वो ही है सिर्फ इसमें। और सर दूसरा एमएसएमई मींस एमएसएमई रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड बोथ आर इंक्लूडेड।
हाँ बिल्कुल, क्लासिफाइड होने चाहिए, ये क्राइटेरिया मीट होना चाहिए, राइट। Yes. Yes. अच्छा, डिफॉल्ट, ये पढ़ लीजिए एक बारी। MCA notification dated 9th April 2021. हम्म 10 lakh rupees as the minimum amount of default. हम्म And Section 4 of IBC shall not be more than 1 crore rupees. मतलब ये है कि अभी डिफॉल्ट 10 lakhs है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफाई कर सकती है एक हायर अमाउंट भी, अगर 1 करोड़ तक करना है पीपीआईआरपी को। ऐसा भी हो सकता है ना कि गवर्नमेंट सोचे कि भाई 10 लाख रुपए तो कम है, इसको 50 lakhs कर दो। तो गवर्नमेंट अगर 1 लाख 1 करोड़ तक करेगी तो एक्ट में अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर 1 करोड़ से ऊपर करती है तो एक्ट में अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, ये मतलब है। जैसे मान लो अगर गवर्नमेंट चाहे भाई 10 लाख से इसको 20 लाख करना है, तो एक नोटिफिकेशन इशू करेगी, 20 लाख हो जाएगा। चलिए। Applicability under Section 54A continued. CD is eligible to submit a resolution plan under Section 29A. हाँ, तो सबसे पहली बात क्या है, हमने क्या पढ़ा कि सीडी विल गिव ए बेस रेजोल्यूशन प्लान। अब बेस रेजोल्यूशन प्लान में पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि क्या 29 में अगर एलिजिबल है तो वो क्या सबमिट कर सकता है। Yes. हाँ पढ़िए। And 29 says, who is not eligible to be RA, that is undischarged insolvent, willful defaulter. Control is with such a person whose account is NPA, convicted for any offense, punishable with imprisonment, disqualified director, prohibited by SEBI, is a promoter of inordinate transaction, etc. मैंने 29 को समराइज कर दिया यहाँ पर कि 29 में ये चीजें हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो इनएलिजिबिलिटी देखनी है, इसके साथ में आपको सेक्शन 240 कैपिटल ए भी पढ़ना है, ठीक है। एक बार सेक्शन 240 कैपिटल ए भी पढ़ दीजिए। Yes, sir. सेक्शन 240 कैपिटल ए। सर मैं सर्च कर रही हूँ भी फाइल। कोई और पढ़ सकता है जिसके बाद भी सेक्शन इसको 240 मिल कैपिटल ए। जाए वो मैं सर्च कर रही हूँ भी। हाँ हाँ। Notwithstanding anything to the contrary contained in this act, the provision of clause C and H of section 29A shall not apply to the resolution applicant in respect of corporate insolvency resolution process or pre-pack insolvency resolution process of any micro, small and medium enterprises. भाई इतना ही पढ़ लीजिए। इसका क्या मतलब हो गया, 29A C में क्या लिखा हुआ है और 29A H में क्या लिखा है, 29A C बता सकते हो। 29A, भाई इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, याद होना चाहिए। सही है सर, सही है। 29A C क्या बोलता है, एनपीए बोलता है। सर हाँ, 29A H क्या बोलता है, वो गारंटी के बारे में बोलता है कि हम्म, गारंटी अगर इन्वोक की गई। इतना याद होना चाहिए भाई, किताब देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सही है सर, सही है। है ना। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट पढ़िए मैडम आगे। Yes, sir. Name of the resolution professional is proposed and approved under Section 54A, subsection 2, subclause E. हम्म FC is not less than 10% in value of total debt. May propose the name of RP and FC representing 66% of the total debt shall approve such proposal with terms of appointment of RP in Form P3. अब इसके बारे में कौन बताएगा, इसके बारे में कौन एक्सप्लेन करेगा कि इसका क्या मतलब है। भाई देखो, अभी एप्लीकेशन लगी नहीं है, ठीक है। पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन अभी लगी नहीं है। अभी क्या है, इसने फाइनेंशियल क्रेडिटर को अप्रोच किया कि देखो भाई ऐसा है, डिफॉल्ट तो हो ही गया, उनको पता ही है। हम्म, हम्म, अब वो ये कहता है भाई देखो ऐसा है कि आप आरपी सेलेक्ट कर लो। आरपी कौन सेलेक्ट करेगा, सीडी तो सेलेक्ट करेगा नहीं, एफसी सेलेक्ट करेंगे। अब एफसी इससे पूछते, इसने एफसी की मीटिंग बुलाई, पहले इसने लिस्ट बनाई, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स की, उसमें देख लिया कौन एफसी है, कौन ओसी है, ये सारी चीजें, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है ना
कि जो सारे एफसी रिलेटेड पार्टीज हो, तो फिर उसमें आपको ओसीज के पास जाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहला काम क्या करेगा, ये एक लिस्ट बनाएगा। लिस्ट के लिए फॉर्म है, फॉर्म P2। फॉर्म P2 में ये लिस्ट बना लेगा और उस लिस्ट में देख लेगा कौन एफसी है, कौन ओसी है, कौन सिक्योर्ड है, कौन अनसिक्योर्ड है, कौन रिलेटेड है, कौन अनरिलेटेड है। ये सारी एनालिसिस सीडी खुद कर लेगा, ठीक है। अब सीडीज एफसीज को अप्रोच करेगा और एफसीज में वो कहेगा भाई आप नाम प्रपोज करो आरपी का, ठीक है। क्योंकि एप्लीकेशन यहां एफसी तो लगा नहीं रहा, प्री पैक में एप्लीकेशन कौन किसको लगानी है, सीडी को लगानी है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट किन का इन्वॉल्व है, एफसी का प्राइमरी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है ना। तो वो ये कहेगा, एफसी पूछते हैं भाई तुम बताओ कि कौन नाम प्रपोज कर सकता है, क्या हर हर एफसी नाम प्रपोज कर सकता है। अब आप बताओ, क्या हर एफसी नाम प्रपोज कर सकता है। नो मान सर, नो लीजिए नो। एक एफसी का 2% का फाइनेंशियल डेट है, क्या वो नाम प्रपोज कर देगा। नो सर। नहीं। कितना मिनिमम होना चाहिए, 10%। 10%। 10% या उससे ज्यादा, हाँ, ठीक है। यस, एटलीस्ट 10%, मान यस। लीजिए 10 एफसीज हैं, ठीक है, सबका 10-10% है, तो क्या सारे लोग नाम प्रपोज कर सकते हैं। भाई सिंपल क्वेश्चन पूछा मैंने, मुश्किल थोड़ी पूछा है। टोटल डेट 100 करोड़ का है, 10 एफसी है, 10 एफसी का 10-10 करोड़ रुपए का डेट है। हम्म। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या सारे लोग नाम प्रपोज कर सकते हैं। मे बी यस सर। यस, वेरी करेक्ट। तो क्या है, जिसका भी 10% या उससे ज्यादा है वो कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है एक का 50 हो, एक का 20 हो, एक का 30 हो, तो 3 लोग हो जाएंगे, फिर 3 नाम आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है एक आदमी कहे यार मैं तो कुछ नहीं प्रपोज कर रहा, तुम ही कर लो जो करना है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो राइट सबको देंगे। प्रपोज वर्ड लिखा, मे प्रपोज। तो जिसका भी 10% से क्योंकि 10% कौन बताएगा, ये तो सीडी को ही पता है ना। भाई एक एफसी को दूसरे एफसी के बारे में तो पता नहीं, है ना। ये पूरी कहानी किसको पता होगी, सीडी को ही पता होगी, है ना। तो वो सीडी क्या है, लिस्ट बनाएगा और उस लिस्ट के बेसिस पे उनको कहेगा कि भैया आप नाम प्रपोज करो, और नाम उसके लिए मीटिंग बुलाएगा ये, ठीक है। उस मीटिंग का टाइम कितना होगा वो सारी चीजें दे रखी है, वो आगे अगला पढ़ लीजिए, उससे पता चल जाएगा। Regulation serve notice of meeting to all the FCs except related party at least 5 days before meeting unless a shorter time is agreed by all of them. तो ये क्या Form करेगा, सबसे पहले एक लिस्ट बनाएगा। उस लिस्ट में जितने भी जो अनरिलेटेड पार्टीज हैं, ठीक है ना, उनको बुलाएगा उस मीटिंग में, और 5 दिन का नोटिस देना है। और शॉर्टर नोटिस भी हो सकता है अगर सारे एग्री कर जाएं। और उस नोटिस का फॉर्म क्या होगा, P2. फॉर्म P2। फॉर्म P2 में क्या रहेगा, इट विल इंडिकेट डेट, टाइम, वेन्यू, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स विद अमाउंट ड्यू, ठीक है। ये सारी चीज इसमें रहती है। अगला पढ़िए। The financial creditor who are not related party of the CD and have not less than 10% of the value of the total financial debt of such creditors may propose name of the IP for the purpose of clause E of subsection 2 of section 54A. हाँ, तो देखो जितने भी 10% या ज्यादा का डेट है वो नाम प्रपोज कर सकते कर हैं, सकते हैं। ठीक है। अब मान लो सारे एफसी से रिलेटेड पार्टीज हैं, तो क्या होगा। तो वो ओसी वाला ऑप्शन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। हाँ, पढ़ लीजिए अगला लाइन। Okay. Where there are no FCs or FCs are related party, COJs shall be of the OC and above provisions will be applicable to the OC's meeting mutually mutatis. हाँ, मोटेटिस मोटेटिस मतलब वही जो फाइनेंशियल क्रेडिटर के बारे में लिखा है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के बारे में हो जाएगा। चलिए, Yes, sir. ये हो गया। उनकी वोटिंग हो गई, जिसको 66% ज्यादा वोट मिल गए वो आरपी सेलेक्ट हो जाएगा। अब आरपी सेलेक्ट हो गया है, अब आरपी के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सेटल करेंगे, क्योंकि अभी मीटिंग तो हुई नहीं, अभी तो अप्रूवल हुआ नहीं, है ना।
अभी तो क्या है, इसने सिर्फ एफसीएस की मीटिंग बुलाई है। अब उससे ये पूछेगा कि भैया आप ये बताओ कि जब तक ये एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हो जाती तब तक कितनी फीस लोगे, ठीक है, और अगर एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो कितनी फीस लोगे। अब एप्लीकेशन अप्रूव भी हो गई तो क्या है, कंट्रोल तो सीडी के पास है, सीडी को ही टैक्स रिटर्न भरनी है, सीडी को ही इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है, सीडी को ही जीएसटी रिटर्न भरनी है, आपको तो मॉनिटर करना है, ठीक है। आपका काम बेसिकली रेजोल्यूशन प्लान से रिलेटेड है, क्योंकि वो काम सीडी को आता नहीं है, ठीक है। सीडी को अपनी फैक्ट्री तो चलानी आती है ना, तो सीडी तो फैक्ट्री चलाता रहेगा, फैक्ट्री आपको नहीं चलानी, आपको सिर्फ रेजोल्यूशन प्लान में हेल्प करनी है, क्योंकि उसको ये सब कहानियां पता नहीं है। आपको क्या है, अगर बेस रेजोल्यूशन प्लान नहीं भाता, आपको ठीक नहीं लग रहा, तो आप नए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट मंगाओगे, वो सब कहानी सीडी को तो मालूम नहीं है, वो काम आप कर लेना, ठीक है, उसकी फीस बता दो। और तीसरी सिचुएशन, अगर हम सीडी को बाहर निकाल देंगे 54J में, तो आपके पास पूरा कंट्रोल आ जाएगा, उसकी फीस बता दो। तो तीन तरह की फीस बताएगा आरपीएस में। पहली, एप्लीकेशन अप्रूव होने से पहले, दूसरी एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद, और तीसरी जब मैनेजमेंट को बाहर निकाल देंगे 54J में, जब पूरा कंट्रोल सीडी के पास आ जाएगा, जब उसी को सारी रिटर्न फाइल करनी है, सारी कंप्लायंसेस करनी है, तब फिर उसकी फीस मैक्सिमम ज्यादा होगी। तो तीन तरह की फीस, ये सारी चीजें कहां पर आती हैं, P3 में, P3। ठीक है। चलिए अगला पढ़िए। Declaration by directors or partners of CD, Section 54A, subsection 2, clause F, subclause F. Majority of directors or partners of CD have made declaration in Form P6 हाँ, अब stating ये एक तो पहली बात इसमें ध्यान में रखनी है कि यहां पर वर्ड क्या है, मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी नहीं है, और डेजिग्नेटेड पार्टनर भी नहीं है ना। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म इसमें आ जाएगी क्या पीपीआईआरपी में? नहीं सर, पार्टनरशिप LLP फर्म नहीं only। आएगी, सिर्फ एलएलपी आएगी, ठीक है, कंपनी या एलएलपी, वही वही कॉर्पोरेट फॉर्म है। तो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, मेजॉरिटी मतलब सिंपल मेजॉरिटी, या पार्टनर्स ऑफ सीडी, पार्टनर में सारे पार्टनर, मान लो एक एलएलपी है जिसमें 100 पार्टनर्स हैं, ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लो 5 हैं, तो आपको मेजॉरिटी 5 से देखनी है, 100 से देखनी है? 100। 100 से 100 से देखनी, वेरी गुड, ठीक है। सर और सुपर इनको एक मेजॉरिटी डिक्लेरेशन देना है फॉर्म P6 में। 6 में पढ़िए आगे। है सर, सुपर मेजॉरिटी मींस 2/3 ना सर? हाँ जी, सुपर मेजॉरिटी मींस कितना? किसका? 51%। सर ये मेजोरिटी का पूछ रहे हैं, सिंपल मेजोरिटी मतलब सुपर मेजॉरिटी। सुपर मेजोरिटी। सुपर मेजोरिटी कोई वर्ड नहीं होता, स्पेशल मेजोरिटी होता है या मेजोरिटी होता है। ओके ओके सर, ओके ओके मेजोरिटी होता है नॉर्मल मोर देन 50%, और स्पेशल मेजोरिटी होता है 75% और मोर। और ये वर्ड कहाँ लिखे गए हैं, ये लिखे हैं कंपनीज एक्ट में। ओके सर, ओके सर। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ। Majority of director or partners of CD have made declaration in Form P6 stating that the CD cell shall file an application for initiation of PPIRP within defined period time not exceeding 90 days. तो सबसे पहले तो ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं, और डिक्लेरेशन का फॉर्म है P6, उसमें कहते हैं कि हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे विद इन डेफिनेट टाइम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। तो 90 डेज तक क्या करेंगे, इतना लंबा टाइम क्यों ले रहे हैं ये? 90 डेज में क्या करेंगे ये? सर बेस रेजोल्यूशन प्लान तैयार करेगा, आरपी को अपॉइंट करेगा, आईआरपी सॉरी, पहले हम्म, आईआरपी, फिर वो हाँ सारा तैयार करेगा, फिर एप्लीकेशन डालेगा, तब वो हाँ, देखो आरपी। ऐसा है भाई, अभी तो मीटिंग होनी है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की मीटिंग होगी, है ना, उसके बाद में बेस रेजोल्यूशन प्लान तैयार होगा, और बेस रेजोल्यूशन प्लान के अलावा क्या है कि वो ये सारी कंडीशंस भी देखेगा, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो सारी कंडीशन देखेगा कि एमएसएमई है या नहीं है, तभी एप्लीकेशन लगाएगा ना वो। ये जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया, उसको किस लिए अपॉइंट कर रहे हैं, कि वो जो सारी कंडीशंस थी हमारी कि एमएसएमई है नहीं है, वो सारी कंडीशंस किसको देखनी है, वो इसी को देखनी है, आरपी को।
Okay. That the PPIRP is not being initiated for defraud any person, and the name of the IP proposed and approved to be appointed as resolution professional under clause E of subsection 2 of section 54A. ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन देनी है फॉर्म P6 के अंदर। चलिए, Members of CD have passed special resolution approving the filing of application for initiating PPIRP. अब जो मेंबर्स ऑफ सीडी है इनको भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। अब इस पर एक सवाल है, मान लीजिए एक शेयर होल्डर है जिसके पास कंपनी में 80% शेयर है, ठीक है, और बाकी 4 लोग हैं जिनके पास 5% शेयर है। एक आदमी के पास 80% है और बाकी 4 के पास 5% है, ठीक है, टोटल 100 हो गया। अब आप ये बताओ कि कितने लोग इस रेजोल्यूशन को अप्रूव कर सकते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन। जिसके पास 80% है वो चाहे तो अप्रूव कर सकता है, यस और नो? Yes, yes, yes. यस, क्योंकि आपको जो देखना है वो शेयर कैपिटल का परसेंटेज देखना है, ठीक है। ये Yes. नहीं कि भाई आपको नंबर, जैसे अगर 5 शेयर होल्डर है, अगर वो आपसे सवाल पूछे कि 5 शेयर होल्डर है, एक के पास 80% है और बाकी 4 के पास 5% है, तो क्या एक शेयर होल्डर जिसके पास 80% है क्या वो अप्रूव कर सकता है? द आंसर इज यस। We have तो to दूसरी see बात है कि value. अगर मीटिंग कोई होगी तो मीटिंग में कोरम की बात अलग है ना। तो लेकिन यहां जो है, क्योंकि इसका एक और हिंट मैं आपको देता हूं, जब आप MGT 14 करते हो तो MGT 14 में आप नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी लिखते हो और शेयर कैपिटल भी लिखते हो, लेकिन कैलकुलेशन जो होती है वो शेयर कैपिटल के हिसाब से होती है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, एक LLP है, LLP में तो शेयर कैपिटल की कॉन्सेप्ट नहीं है, तो LLP में स्पेशल मेजोरिटी कैसे होगी? LLP में स्पेशल मेजोरिटी नंबर के हिसाब से होगी, ठीक है। डिक्लेरेशन में सिंपल मेजोरिटी है, अप्रूवल में 3/4 मेजोरिटी। समझ गए आप? जैसे मान लीजिए एक LLP है जिसमें 10 पार्टनर है, ठीक है, तो 10 पार्टनर में से कितने पार्टनर्स की अप्रूवल चाहिए? 10 पार्टनर में डिक्लेरेशन कितने पार्टनर अप्रूव कर सकते हैं LLP में? एक LLP है जिसमें 10 पार्टनर है, अब डिक्लेरेशन देना है तो डिक्लेरेशन कितने कितने लोगों को देना पड़ेगा मिनिमम? More than 5. है, More than 5. हाँ, मिनिमम मिनिमम कितने होंगे? तो more than मतलब 6. हाँ, मिनिमम 6, ठीक है, ठीक है। और ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे ये कितने लोग पास करेंगे? 75% के हिसाब से लेंगे, हाँ, तो तो 7 बताओ ना मतलब कितने 8. होंगे? 8. 8, वेरी गुड, ठीक है। 7.5 क्यों नहीं? सर राउंड 7 कैसे लेंगे सर, राउंडिंग ऑफ टू. चलिए Yes, sir. चलिए। Okay. CD to submit following information to FC. हम्म Section 54A, subsection 4. हम्म Copy of special resolution passed by members of CD. हम्म Declaration of directors or partner in Form P6. हम्म Base resolution plan which conforms to the requirement referred to in section 54K and such other condition as may be specified. हम्म Such other information and document as may be specified. तो अब ये CD ने ये इंफॉर्मेशन देनी है FC को, ठीक है, कि भैया हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया, डिक्लेरेशन हो गया, और एक ये बेस रेजोल्यूशन प्लान भी हमारा है जो कि 54K की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। 54K रिक्वायरमेंट्स क्या है बेसिकली, कि आपका जो OC जो है उसके ऊपर कोई हेयर कट नहीं है। PPIRP में इनिशियल कंडीशन ये है कि ऐसा बेस रेजोल्यूशन प्लान लाओ जिसमें OCs को कोई भी हेयर कट नहीं होगा, कोई भी इंपेयरमेंट नहीं होगा। बाद में हो सकता है जो नया रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आए वो अलग कहानी है, लेकिन जो बेस रेजोल्यूशन प्लान देगा उसमें वो ये कह सकता है कि भाई मैं फाइनेंशियल क्रेडिटर को 60% दूंगा, लेकिन जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है वो पूरा अमाउंट देना पड़ेगा, उसमें कोई इंपेयरमेंट नहीं हो सकता बेस रेजोल्यूशन प्लान में। 54K में ऐसा लिखा है। चलिए नेक्स्ट। CD shall obtain approval from its FC, not being its related parties, representing not less than 66% in value of financial debt due to such creditor
for the filing of an application for initiating PPIRP in form P4. तो P4 में एप्लीकेशन इसको लगानी है, अप्रूवल लेना है, ठीक है। Where, चल where CD does not have FC or FCs are related party, approval of OC shall be obtained as per this section 54A subsection 3. ठीक है जी। तो मेरे ख्याल यही कर देते हैं खत्म, या और करना है कंटिन्यू? नहीं सर, अभी डिनर बाकी है तो डिसकंटिन्यू करते हैं। हैं? सर आज के लिए इतना। हाँ काफी है, ठीक है, ओके। यस सर, यस सर। तो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। आज थोड़ा सा उस वजह से हो गया, थोड़ा करना पड़